If you are a regular watcher of this channel, then you know that how much I love reading. And reading is one of the reasons why I'm able to speak fluent English. And in today's lesson, I will teach you how you can read books, how you can identify tenses, and how you can understand reading and use it as a speaking tool. And if you are new here, my name is Roshan, and this is a 90 days spoken English course where we are learning sentence structures, vocabulary, and different aspects of spoken English. So in this series, we have learned two tenses completely, present and past tense. Now, the example I'm going to give you is from one of my favorite books of all time, and this book ignited the spark of reading in me. And the book that we are going to discuss today is Harry Potter, the first book, that is called Harry Potter and the Sorcerer's Stone. So you have to keep a few things in mind whenever you are reading to improve your spoken English. First of all, make sure to speak loudly or read loudly. Second, keep a pen and paper with you all the time. Don't feel hesitant and shy to write in the margins of your books. And fourth, don't put any kind of pressure on yourself even if you don't understand the text. You can reread it. So let me take you to the page and show you the example how I started reading and how you can also make it part of your routine. Chapter 1, The Boy Who Lived. This is the first chapter of Harry Potter, The Boy Who Lived. I will also translate it for you for anybody who doesn't understand English completely. और अगर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, I will also translate it for you. But first, let me read the first paragraph and follow along. See how I am reading, and you have to follow the same method. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you would expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. You know, it's very difficult to pronounce some names, जैसे for example Dursley. I may be pronouncing it incorrectly. Privet Drive. So these are names. तो अगर आप नाम गलत पढ़ रहे हो, it's not a big deal, but you should pay close attention to English words. अगर उसका प्रोनाउंसिएशन में आपको डाउट है, मेक श्योर टू मेक ए सर्कल. आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए सिंबल्स बना लो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस ए वर्ड, आई जस्ट मेक ए सर्कल अराउंड इट. अगर मुझे डाउट होता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो मैं उसको सर्कल कर देता हूँ. इफ आई डोंट अंडरस्टैंड ए वर्ड, आई जस्ट अंडरलाइन इट. एंड इवन इफ आई लाइक ए लाइन और ए वर्ड, आई अंडरलाइन इट. सो दीज आर माई सिंबल्स. यू कैन मेक योर ऑन. लेट्स लुक एट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी. मिस्टर एंड मिसेस दर्सले जो कहाँ रहते थे, प्रिवेट ड्राइव, वो लोग वो प्राउडली कहते थे कि हम लोग काफ़ी नॉर्मल हैं. थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज थैंक यू वेरी मच इज ए ह्यूमरस लाइन. वो लोग अपने आप पे प्राउड फील करते थे कि हम लोग काफ़ी नॉर्मल हैं. दे वर द लास्ट पीपल, यानी कि आप उनसे उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो. यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व, कि वो लोग किसी अजीब और मिस्टीरियस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे या फिर उनसे कोई नाता रहेगा. बिकॉज क्योंकि उनको इन सारे बकवास चीज़ों से मतलब ही नहीं था. डिंट होल्ड मतलब नहीं था. स्ट्रेंज का मतलब अजीब, मिस्टीरियस का मतलब रहस्य वाला. माई रिकमेंडेशन इज कि कभी भी जो, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ए वर्ड, मेक श्योर टू राइट इंग्लिश मीनिंग. आप इसी के नीचे यहाँ पे एक इंग्लिश मीनिंग लिखो विच यू कैन अंडरस्टैंड. अगर फिर भी नहीं आ रहा है, यू कैन राइट द हिंदी मीनिंग देयर. एक बार इसको टेंस के नज़र से देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है. द फर्स्ट लाइन, दिस इज यूज्ड एज ए पास्ट टेंस. कैसे पता चल रहा है? वर. वर का मतलब जो बीत चुका है. यहाँ पे भी देखो वर, यहाँ पे भी वर, यहाँ पे डिंट. सो दिस होल पैराग्राफ इज इन पास्ट टेंस. सो आई टोल्ड यू, अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से टेंस पे लिखा हुआ है. आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. एंड जस्ट इमेजिन रिपीटिंग द सेम टास्क फॉर 2 months, 3 months. Do you think you won't be able to build that muscle memory? You will definitely. Have some patience and continue the same process. Let's read the second paragraph. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. I'm not able to pronounce it correctly, so I will just circle it. Mrs. Dursley was thin and blonde and had a nearly twice as the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over the garden fences, spying on the neighbors,
The Dursley had a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. So notice how many words or phrases I have highlighted here. I know the meaning, but I'm doing it for your sake. कि आपको ये unfamiliar लग सकता है, और मुझे अभी unfamiliar क्यों नहीं लग रहा है? Because I have spent so much time with text like this that I can understand it completely. अगर मुझे हिंदी समझ में भी नहीं आता है, but I know the meaning कि ये किस context में use हुआ है. Let me explain it in हिंदी. ये डर्सले क्या थे? एक डायरेक्टर थे किसी फर्म का मतलब ए कंपनी, जिसका नाम क्या था? ग्रेनिंग्स, जो क्या बनाती थी? ड्रिल्स। जो आपने वो ड्रिल्स मशीन देखा है, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू मेक। नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ रीडिंग ए नॉवल, कि आप सारी चीज़ों को पिक्चर कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अब इस कैरेक्टर दसले का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ही वॉज ए बिग बीफी मैन, बिग एंड बीफी, तो इन दोनों वर्ड से पता चल रहा है कि वो मोटा था। और ये लास्ट फ्रेज कंफर्म कर देता है, विथ हार्डली एनी नेक, मतलब ये सेक्शन इतना मोटा था कि फेस और नेक दोनों में डिफरेंस नहीं था। उसकी मूछें कैसी थी? बहुत बड़ी, वेरी लार्ज। अब यहाँ पे उसके वाइफ के बारे में बात हो रहा है। मिसेस डर्सले वॉज थिन एंड ब्लॉन्ड, वो पतली और गोरी थी, और जो उनका ये गर्दन था वो कैसा था? ट्वाइस एज द यूजुअल अमाउंट ऑफ नेक, मतलब नॉर्मल गर्दन से लंबा गर्दन था। सो इट मीन्स शी वॉज वेरी थिन। अब ये डिस्क्रिप्शन जो थिन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे और कंफर्म कर रहा है उसको। अब उनके गर्दन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, विच केम इन वेरी यूजफुल एज सी स्पेंड सो मच ऑफ अ टाइम क्रैनिंग ओवर गार्डन फेंसेस। क्रैनिंग का मतलब वो बगुले की तरह अपने गर्दन को उठा के स्पाई करती थी। कहाँ पे? गार्डन फेंसेस में। फेंसेस का मतलब होता है जो एरिया घेर के रखते हैं, बगीचे का एरिया जो घिरा होता है, यानी कि उसके तरफ वो झांक के क्या करती थी? स्पाई करती थी अपने नेबर्स में कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम डडली था। आई होप आई एम नॉट बचरिंग दिस नेम्स। और उनके ओपिनियन में देयर वाज नो फाइनर बॉय एनीवेयर, और उनके ओपिनियन में, उनके नज़र में उससे अच्छा लड़का पूरे दुनिया में कहीं नहीं था। नाउ अब इसको भी समझते हैं ये कौन से टेंस में यूज किया गया है। सो ये वाज से हम क्या आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे भी डिड वर्ड यूज हुआ है, ही डिड हैव ए, तो हैव से मतलब नहीं है हमें। डिड वर्ड देखो, ये पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे भी इसका भी डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ है? वॉज से यूज, यानी पास्ट टेंस, यानी कि ये टेंस भी पूरा पास्ट टेंस है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडेज लेसन। द डर्सलीज had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister because her sister and her good-for-nothing husband were as undurlish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Potters had a small son too, but they had never even seen him. This boy was another good reason for keeping the Potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Another description completely in past tense. अब ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, दिस कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, बट आप भी यही काम करो, कीप अंडरलाइनिंग इट। एंड नाउ वी हैव चैट जीपीटी, गूगल, सर्च एवरीथिंग एट वंस एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। एंड द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू, जस्ट राइट एवरीथिंग इन द मार्जिन्स। और जब आप तीसरी बार या दूसरी बार उस किताब को पढ़ोगे, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट कम्प्लीटली। बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि आपने अंडरलाइन किया, लिखा, फिर समझने की कोशिश किया। बट अगेन योर गोल इज़ नॉट टू फिनिश द बुक। आपको इंटरनेट पे जाके अपने दोस्तों को नहीं बताना है कि यस आई एम ए रीडर। यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट? अब इसको समझते हैं। अब दर्सलीज के पास सब कुछ था जो वो चाहते थे, बट उनके पास एक सीक्रेट भी था। उनका सबसे बड़ा डर क्या था? कि शायद लोग उसको डिस्कवर कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। दे डिडंट थिंक, उनको लगता था कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि अगर किसी को पता चल जाए पॉटर्स के बारे में। अब देखो ये नाम को प्लूरल बनाया गया है क्योंकि ये पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एक पॉटर की बात नहीं हो रही, द होल फैमिली ऑफ पॉटर की बात हो रही है। मिसेस पॉटर वाज मिसेस डर्सली सिस्टर। अब ये मिसेस पॉटर कौन थी? मिसेस डर्सली की बहन थी, लेकिन वो लोग कई सालों से मिले नहीं थे। इनफैक्ट मिसेस डर्सली प्रिटेंड करती थी। प्रिटेंड का मतलब उन्होंने नाटक करना स्टार्ट कर दिया था। प्रिटेंड का मतलब नाटक भी होता है, और उन्होंने ये मान लिया था कि
मान लिया था कि उनकी कोई बहन ही नहीं है, क्योंकि उसकी बहन और गुड फॉर नथिंग हस्बैंड जो पॉटर था, गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं, वो लोग कंप्लीटली अपोजिट थे। किसके? डर्सली के फैमिली से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड बनाया गया है अनडर्सलिस, मतलब ये अपने फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रही है कि जैसा उनका नेचर था, पॉटर्स बिल्कुल अपोजिट थे डर्सली से। द डर्सली शडर्ड, यानी कि शडर्ड का मतलब कुछ ज़्यादा ही डरते थे, कांपते थे। इन लिटरल हिंदी मीनिंग कांपना। वो कांपते थे कि क्या होगा जब अगर पॉटर्स आ गए इधर स्ट्रीट में, उनके गली में, तो कैसे उसके नेबर रिएक्ट करेंगे। और डर्सलिस को ये भी पता था कि पॉटर्स के पास एक उनका भी बेटा था जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था। दिस बॉय वॉज अनदर गुड रीजन, और ये लड़का एक और ही रीजन था जो चाहते थे कि पॉटर्स उनसे दूर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे डडली पे पॉटर का कोई असर पड़े। दिस इज आवर टुडेज कंप्रहेंशन लेसन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक बार में एक सेंटेंस पढ़ो, उसको ब्रेक डाउन करो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंडरलाइन इट, राइट इट डाउन, एंड बिलीव मी, इफ यू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स, देन यू आर गोना स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब एक और एडिशनल चीज़ कर सकते हो कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसका ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। इससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आई रेड दिस बुक अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस सम ऑफ द नेम्स, सो दैट्स नॉट ए बिग डील। अगर नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप उस पर ये ना सोचो कि मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है। दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है, जो हमारे नेम्स है, उससे हम फैमिलियर हैं। सो एंड दिस बुक इज़ बेस्ड इन ब्रिटेन, यूके, तो हमें अगर नाम पढ़ने भी नहीं आ रहा है, इट्स नॉट ए बिग डील। बट या, इफ यू वांट टू रीड इट करेक्टली, यू कैन लिसन टू द ऑडियो बुक एंड प्रोनाउंस द नेम्स करेक्टली। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस लेसन। आप चाहते हो कि मैं इस लेसन को कंटिन्यू रखूं, सो आई विल मेक इट रेगुलरली, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू, आई विल मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ताकि आप इसको यूज कर सको। एंड इफ़ यू नीड ए कम्युनिटी जहाँ पे आप मेरे साथ और एक ग्रुप ऑफ लर्नर्स के साथ सीख सको, then you can drop me a message on my number and I'll share the details. And I'll see you soon. Bye.